Hello students, let's begin with session 25 today. What this session is trying to tell us, a few words that we have discussed in the last session now will be elaborated a little more. If you just see this trend of this book, suppose 24th session is talking about certain words, now he will tell you something about them, and then 25 he will come and then explain them further. Then he will be using them in 30 session as well, so that he keep recalling and then he keep learning. This is extended learning we call. Okay, now what it says about keeping one's mouth shut. What is that? If you let your mind play over some of the taciturn people you know, taciturn याद है जो कम बोलते थे, you will realize that their abnormal disinclination to conversation, याद है वो बोल नहीं रहा था, वो सुन नहीं रहा था, वो आप उसको डिस्ट्रैक्ट कर रहे थे तभी वो वैसे yawning कर रहा था. So you will realize that their abnormal disinclination to conversation makes them seem morose, means very ill-tempered kind of thing, bad-tempered kind of thing, sullen, bad-tempered and sulky. Sulky, you know, when you are in a bad mood, but you are in no stage to say something, आप कुड़ते रहते हैं खुद में, that is known as sulky होता है. So, you will realize that their abnormal distinction to conversation makes them seem morose, sullen and unfriendly. Calvin Coolidge's taciturnity was world famous, and no one, I'm sure, ever conceived of him as cheerful. किसी ने कभी उनको नहीं माना कि वो cheerful थे, over friendly और particularly sociable. Sociable मतलब जो ज़्यादा लोगों में mingle होने वाला हो, kind of thing, engaging readily with other people, marked by friendliness. ऐसे नहीं थे वो, मतलब लोग ऐसा मानते हैं क्योंकि वो कम बात करते थे. There are doubtless many possible causes of such verbal rejection of the word. कई सारे रीजन हो सकते हैं कि ऐसे लोग बात ना करना चाहते हो. परहैप्स लैक ऑफ सेल्फ एश्योरेंस, फीलिंग्स ऑफ इनएडिक्वेसी और हॉस्टिलिटी. आपको लगता है कुछ कमी है आपके अंदर, इनएडिक्वेट है तब हो सकता है, या बहुत एंगर में है तब हो सकता है. एक्सेसिव सीरियसनेस और इंट्रोस्पेक्शन भी हो सकता है. ऐसा नहीं है कि ऐसे आदमी गुस्से में रहे, हो सकता है इंट्रोस्पेक्टिव मोड में रहते हो, ज्यादा बात ना करना चाहते हैं, और जस्ट प्लेन हैविंग नथिंग टू से. हो सकता है कुछ कहने के लिए भी ना हो, मतलब बड़े सारे रीजन हो सकते हैं सामने वाला टेसिट क्यों है. हु नोज, द कॉज में बी जोग्राफिकल एंड क्लाइमेटिक, ये भी हो सकता है, रादर देन साइकोलॉजिकल, कुछ भी हो सकता है. यानी ऐसे आदमी चुप क्यों रहते हैं, देयर मे बी मेनी मेनी रीजंस, यू नो. Taciturn is from a Latin verb passio. Now you can see taciturn जब हमने बात करी, अब now he is trying to tell you कि किस root word से आया है. That's what we need to learn in this session. Verb tessio, to be silent, and so tessio is to be silent, and is one of those words whose full meaning cannot be expressed by any other combination of syllables. These few letters are enough to say. It has many synonyms, among them silent, uncommunicative, reticent, reserved, secretive, tight-lipped, and close-mouthed. But no other word indicates the permanent, habitual, and temperamental disinclination to talk implied by taciturn. जितनी बात हम taciturn में कह देते हैं वो किसी और वर्ड में, चाहे जितने भी वर्ड हमने बताया अभी आपके सामने कि वो साइलेंट है, अनकम्युनिकेटिव है, रेटिसेंट है, रिजर्व्ड है, ठीक है, और सिक्रेटिव है, टाइट लिप्ड है, इन सब में क्लोज माउथ है, इन सब में उतनी बात नहीं आती जितनी की टेसिटर्न वर्ड में आती है. यानी टेसिटर्न टॉप रैंक का वर्ड हुआ इस केस के अंदर, हु यूजेस फ्यू वर्ड्स टू टॉक. ओके, बाकी रेटिसेंट भी वही है. टेम्परामेंटल होता है, आपको पता है पर्सन विद टेम्परामेंटल मतलब मूडी हो जाता है. डिसइंक्लिनेशन यानी रिलक्टेंस, इंक्लिनेशन इज योर इंटरेस्ट एंड डिसइंक्लिनेशन इज योर रिलक्टेंस. एंड इम्प्लाई और इन्फर कई बार मैं बता चुका हूँ, इम्प्लाई मीन्स इंडिकेट बाय सजेस्टिंग रादर देन एक्सप्लिसिट रेफरेंस होता है. क्लियरली नहीं कहा जाता, अब हम इम्प्लाई कर रहे होते हैं, आप फिर समझ लेते हैं, आप उसे इन्फर करते हैं. बेटर लेफ्ट अनसेट, क्या? tacit derives from tessio, अभी हमने बात की थी. Here is a man dying of cancer. Now understand tacit कैसा. Here is a man dying of cancer. He suspects what his disease is, and everyone else of course knows. उसको भी पता है कि वो क्या परेशानी है और बाकी सबको भी मालूम है.
क्या परेशानी, ठीक है. Yet he never mentions the dread word, fearful word, anticipate with great apprehension of or fear. Yet he never mentions the dread word, and no one who visits him ever breathes a syllable of it in his hearing. That is, it is tacitly understood by all concerned that the word will remain forever unspoken. सब समझ जाते हैं कि क्या हो रहा है, लेकिन उस वर्ड का कोई नाम नहीं लेता. अगर आपने मूवी देखी है राजेश खन्ना की, आई थिंक आनंद करके मूवी थी, जिसमें उनको कैंसर होता है फिर कोई भी नहीं बोलते, काइंड ऑफ थिंग. पुराने जमाने में तो ऐसा ही होता था. दी पेशेंट हैज नॉट बीन टोल्ड अबाउट दिस, और सब लोग उसको, वो पेशेंट को भी पता होता था कुछ मेरे साथ ऐसा चल रहा है. दैट्स व्हाट द की इज ट्राइंग टू से, यानी समथिंग व्हिच इज नॉट बीन स्पोकन बट विल रिमेन फॉरएवर अनस्पोकन. वो अनस्पोकन रहता है लेकिन मीनिंग सबको समझ आता है. Such a situation today, I was saying, however, may or may not be typical. There appears to be a growing tendency among doctors and families to be open and honest with people who are dying. बता देते हैं kind of thing. But change हो गया समय. But he's saying this is something which is left unsaid हो जाता है. Consider another situation now. What? An executive is engaging in extracurricular activities with his secretary. Okay? उसके कुछ alliance हैं. Yet during office time, they are as formal and distant as any two human beings can well be. Office में वो बिल्कुल किसी को पता नहीं चलने देते कि उनकी कुछ relationship है. Neither of them ever said to the other, क्या? Now look here, we may be lovers after 5 o'clock, but between 9 and 5, we must preserve the utmost decorum. Okay? उन्होंने एक दूसरे से कहा नहीं है कि हम ऐसा करेंगे, लेकिन ये without said, विद दिस अनसेड, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग है कि ड्यूरिंग द डे वो आपस में कुछ बात नहीं करेंगे, ऑफिशियल रहेंगे, ऑफिशियल डेकोरम को मेंटेन रखेंगे, बाद में जो भी पर्सनल है वो रखेंगे. तो प्रिजर्व इज मेंटेन इन ओरिजिनल और एग्जिस्टिंग स्टेट. आप प्रिजर्व करते हैं थिंग्स को, अटमोस्ट इज द अटमोस्ट इंपॉर्टेंस, वी से लाइक दिस. एंड देन डेकोरम, बिहेवियर इन कीपिंग विद गुड टेस्ट एंड प्रोप्राइटी. प्रोप्राइटी मतलब जो प्रॉपर होता है, यानी ऑफिस में फॉर एग्जांपल जो कह रहा था वो प्रोप्राइटी मेंटेन करना है. कस्टमरी बिहेवियर जो वहां पर होना चाहिए, एटिकेट जो मेंटेन होना चाहिए. सो दिस इज नॉट बीन सेड बिटवीन द टू, बट इट इज मेंटेन्ड. ओके. सच स्पीच, such a verbal arrangement is considered unnecessary, so we may say that the two have a tacit agreement. जैसे वो tacit पिछली बारे में कैंसर वाले में बोला था, यहाँ पर भी उन्होंने कहा तो नहीं, लेकिन हाँ ये tacit arrangement है, agreement है. That is, nothing was ever actually said to maintain a complete employer-employee relationship during office hours. Means tacit वो है जो understandable है, लेकिन बोला नहीं गया, लेकिन समझा गया है, वो that is tacit है. Anything tacit then is unspoken, unsaid, not verbalized. We speak of a tacit agreement, arrangement, acceptance, rejection, assent, refusal. A person is never called tacit. पर्सन के लिए टेसिट नहीं लगेगा, लेकिन उसके बाकी जितने भी अग्रीमेंट, अरेंजमेंट एंड सब है उसके से लगेगा. आपको लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, टेसिट वो था जो आपकी बात नहीं सुन रहा था, यॉर्निंग कर रहा था, इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा था. फर्दर नाउ वी आर ट्राइंग टू से कि टेसिट जो है कन्वर्सेशन किस तरीके की होती है, जिसमें बिना कहे सामने वालों को समझ आ जाता है. असेंट तो यू नो अग्रीमेंट हो जाता है. द नाउन इज टेसिटनेस. bear in mind that you can transform any adjective into a noun by adding ness, though in many cases there may be a more sophisticated or more common noun form. और भी common form बनाई जा सकती है, लेकिन हाँ ness लगाकर noun बनाया जा सकता है. He's saying changing the a of the root tesio. टेसियो में जो a है, अगर इसको आप I में कन्वर्ट कर दें, he says, and adding the prefix re, उसके आगे re लगा दें अगेन, एंड द एडजेक्टिव सफिक्स एंड, और बाद में ईएंट लगा दें, वी कैन कंस्ट्रक्ट द इंग्लिश वर्ड रेटिसेंट बन जाएगा. अभी हमने बात की थी कि रेटिसेंट हो जाता है. सो वी हैव अनदर वर्ड इज रेटिसेंट आ जाएगा. वो भी अल्टीमेटली टेसिट से ही आया, अगर आप ध्यान से देखोगे यू विल कम टू नो व्हाट इट इज. देन समवन इज रेटिसेंट हु प्रेफर्स टू कीप साइलेंट, वेदर आउट ऑफ योर शाइनेस, एम्बेरसमेंट और फियर ऑफ रिवीलिंग what should not be revealed. हो सकता है वो इसलिए चुप हो कि वो नहीं कहना चाहता जिसके मुंह से ना निकल जाए, इसलिए वो टेसिट हो सकता है. The idea of againess in the prefix has been lost in the current meaning of the word. अब जो हमने बोला है इसका
एक और नया मीनिंग हमने निकाल लिया है. We have frequently made nouns out of ENT adjectives. Now the noun form of reticent is reticence आ जाएगा. Now अब आप निकालेंगे तो क्या reticence बन जाएगा. Now you can see in this chapter what is trying to say, tacit के अलग अलग usage kind of thing, वहां पर हम उसको निकाल रहे हैं. Then talk 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 पहले भी हम बात कर चुके हैं. Loquacious people love to talk. This adjective is not necessary a put down, ऐसा नहीं है कि वो कहीं let down करने वाला हो, but the implication when you so characterize people, जब आप लोगों को characterize करना चाहते हैं तो is that you wish they would pause for breath once a while so that you can have your turn. आप उनको characterize करते हैं, यार ये बात ही करता रहेगा, एक सेकंड का pause भी नहीं मारता कि आप बात कर सकें, ऐसा वाला आपने उसको कह दिया कि टॉक 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 करता है. द नाउन इज loquacity और कोर्स ऑफ कोर्स loquaciousness बन जाएगा. एंड द वर्ड डिराइव्स फ्रॉम द लैटिन locor टू स्पीक और ए रूट फाउंड आल्सो इन. ये locor एक स्पीक के लिए यूज होता है लैटिन में और उसका वर्ड जो है हमारे पास आप देखेंगे ऑल्सो इन soliloquy. soliloquy speech to oneself, locor plus solus alone, और etymologically ये speech when alone, जब आप खुद से ही बात करते हैं that is not soliloquy हो जाती है. when you're talking to your own self is soliloquy होती है. ओके और वहां पर आप देखिए soliloquy में solitariness आ गया, वहां पर locor से वर्ड निकाल लिया तो वहां से soliloquy हो गया, और जबकि टॉक करने वाला क्या था, loquacious था, ये आप पहले ही पढ़ चुके हैं. ठीक है. Then we often talk to ourselves. No, we all, but usually silently. हम मुंह से नहीं बोलते लेकिन मन ही मन में या दिमाग में आपस में, अच्छा यार ऐसा करूंगा, अच्छा यार देख लेता हूँ, फिर ऐसा कर लेता हूँ, फिर वो कर लूंगा. ये हम मन में बात कर रहे होते हैं, अपने दिमाग से बात कर रहे होते हैं. शायद वर्बल नहीं होती, कई बार वर्बल भी होती है, लेकिन माइंड से तो डेफिनेटली वी स्टार्ट टॉकिंग टू अवर सेल्फ. वी ऑफन टॉक टू अवर सेल्फ बट यूजली साइलेंटली. यूजली साइलेंटली द वर्ड्स गोइंग थ्रू अवर माइंड्स but not actually passing our lips. Not actually. The term logis commonly applied. The term logis commonly applied to utterances made in a play by characters who are speaking their thoughts aloud so that audience won't have to guess. Okay? कई बार ऐसे होता है कि मान लीजिए प्ले चल रहा है, अगर एक करेक्टर है और चार लोग और हैं, वो चार लोग उसके घर मिलने आए लेकिन वो उनको प्ले में ये बताना चाहते हैं आगे दिमाग खाने के लिए, ये बात उसने अपने मन से बोली है, उन चारों को पता नहीं चलनी चाहिए, प्ले कर रहे हैं ना, लेकिन आपको क्या पता चलेगा उसने ये बोला कि यार आगे दिमाग खाने के लिए, दे हैव कम फॉर दिस सो दे आर द पेन इन द नेक. सपोज यू आर मेकिंग ए स्टेटमेंट लाइक दिस, आप अपने मन से कह रहे हैं, वो ना सुन लें, प्ले में ऐसा डिपिक्ट किया है लेकिन आपको सुनाई देगा बिकॉज नेचुरली वो तो बोले गए, अदरवाइज आपको क्या पता चलेगा. So the soliloquist may be alone or other members of the cast may be present on stage, but of course they don't hear what is being said because they are not supposed to know. Play में ऐसे दिखाया जाता है, इस play में इसको एक और भी word बोलते हैं हम लोग, that is known as aside. aside मतलब वो play में बोलता है, आप सुनते हैं एज ऑडियंस, लेकिन ऐसा दिखाया जाता है कि उनको सुनाई नहीं दिया बिकॉज उसने मन से बात की थी, बिकॉज दे आर नॉट सपोज टू नो. एग्विन ऑनेल मेड नोबल यूजेस ऑफ soliloquies. उसने काफी फ्रेश यूज किया है soliloquies को, बड़े ढंग से यूज किया है. इन मोर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा द करेक्टर्स मेड ऑनेस्ट डिस्क्लोजर्स ऑफ देयर फीलिंग्स एंड थॉट्स टू द ऑडियंस बट केप्ट द अदर प्लेयर्स इन द डार्क. ऐसे वो ऑडियंस को सुनाई दे रहा है लेकिन बाकी लोगों को नहीं पता चल रहा है. इस तरीके से कम्युनिकेशन जो है, दिस इज नोन एज soliloquy. एंड देन वी से वर्ब बनाएंगे तो soliloquize करना पड़ेगा. स्पीच टू वन सेल्फ और etymologically स्पीच व्हेन अलोन. We all do this. Sometimes we bring it on lips, but he says normally not. Normally we converse with our mind. That is a soliloquy. Ventriloquist is one who can, through his voice, a listener thinks the sound is coming from some source other than the person speaking. टंग से नहीं आती, आपको लगता है वो कहीं स्टमक से या कहीं आगे से बात कर रहा है, आवाज कहीं ऐसा लगता है. The combining root is the Latin venter, you know. Ventris means belly. Etymologically, ventriloquism is the art of speaking from the belly.
ओके, ऐसा लगता है. द एडजेक्टिव इज वेंट्रिलोक्विस्टिक और वेंट्रिलोक्विल. कैन यू वर्क आउट हाउ द वर्ब विल एंड? अगर मैं इसका वर्ब लिखना चाहूँ तो वो वेंट्रिलोक्वाइज कर देगा. ओके, दैट्स व्हाट द केस इज. यानी आपको वो स्पीच ऐसा नहीं लगता कि उसके माउथ से आ रही है, उसके टंग से आ रही है. वो थोड़ा अंदर से कहीं से बात करता है, हस्की साउंड होती है गले से या उसके नीचे से बेली से, ऐसी वेंट्रिलोक्विस्ट हो जाते हैं. कॉलिक्विल बहुत कॉमनली यूज होता है वर्ड कॉलिक्विल. कॉलिक्विल कंबाइंस लिक्योर, पहले भी हमने बात करी, टू स्पीक विद द प्रीफिक्स कॉन, जिसका मतलब विद होता है. यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड. इज स्पेल्ड कॉल बिफोर ए रूट वर्ड व्हेन कॉर बिफोर ए रूट स्टार्टिंग विद आर, कॉम बिफोर ए रूट स्टार्टिंग विद एम. यानी वो बता रहे हैं इसके मीनिंग हर बारी कभी कॉन बन जाता है, कभी कॉल बन जाता है, कभी वो क्या नाम है आपका कॉर भी बन सकता है. आगे लेटर क्या है इस स्पीच पे डिपेंड करेगा. ठीक है. When people speak together, they are engaging in conversation and their language is usually more informal and less rigidly grammatical. Normally जब हम लोग बात करते हैं तो हमारी लैंग्वेज कोई जरूरी नहीं है ग्रामेटिकली करेक्ट हो, लेकिन इनफॉर्मल होती है, हम बात करते हैं. देन व्हाट यू माइट एक्सपेक्ट इन राइटिंग और इन पब्लिक एड्रेसेस. जब आप स्पीच देते हैं, जब लिखते हैं, तो आपकी जो लैंग्वेज होती है, जो हम बोलते हैं, वो लैंग्वेज थोड़ी डिफरेंट होती है. उसमें ग्रामर का इतना रिक्वायरमेंट नहीं होता. तो जो नॉर्मल कोलोक्यूल लैंग्वेज, आई ऑलवेज से कोलोक्यूल लैंग्वेज का मतलब कन्वर्सेशन वाली लैंग्वेज, उसमें ग्रामर का इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता. कोई वर्ड बोल दीजिए चलेगा, सामने वाला समझ जाता है. Colloquial patterns are perfectly corrected. They are simply informal and suitable to everyday conversation. जो हम बोलते हैं colloquial patterns, वो everyday conversation के लिए होते हैं. We all use daily and you yourself know जो वर्ड हमने वहाँ पर कहा है, अगर एक्जेक्टली उसका वो मीनिंग नहीं भी है तो सामने वाला समझ जाता है कि अच्छा यार ये कहना चाह रहा है, बिकॉज बॉडी लैंग्वेज होती है. We can see each other, then we can communicate. That is colloquial, but that is not exactly what we write. Colloquial we are written used in ordinary or familiar conversation, not formal or literally. Then a colloquialism therefore is a conversational style expression like he hasn't got any. He hasn't got any. Any मतलब आगे कंप्लीट तो नहीं करा, लेकिन हाँ any से समझ आ गया. और who are you going with, properly who are you going with, as contrasted to the former or literally he has none बोलना चाहिए था, he hasn't got any नहीं आएगा. with whom are you going बोलना चाहिए था, who are you going with नहीं आएगा. लेकिन आप समझ जाते हैं जब ये कहा जाता है who are you going with, he hasn't got any, समझ आता है आपको. So colloquial is he hasn't got any, but literal is he has none. Colloquial is who are you going with, and literal is with whom are you going. Colloquial English in the English. Colloquial English is the English you and I talk on everyday occasions. It is not slangy, vulgar or illiterate. इसको गलत नहीं कह सकते, परफेक्ट होती है. ग्रामेटिकली हो सकता है ऊपर नीचे हो, लेकिन इसको वल्गर नहीं कह सकते. ये नहीं कह सकते कि आप भाषा का सही प्रयोग नहीं कर रहे हैं. दैट इज कंसिडरेबली करेक्ट. And then circumlocution, I've discussed this word many a time, is etymologically talking around, beat around the bush. Talking around करता है. circum का मतलब ही around होता है. वहीं से अगर आप देखें तो circumference बना है, वहीं से circumvent बना है, और वहीं से circumfoci बना है. तो यानी circumlocution is etymologically talking around. Circum is around, any way of expressing an idea that is roundabout or indirect in circumlocutory. You are now familiar with the common adjective ORY. पहले भी ORY से हमने बनाया था adjective. अब वो कह रहा है circumlocutory होता है. Circumlocution जब आप कभी टीवी पर डिबेट सुनिए, कोई इस तरीके के पॉलिटिकल पार्टी के जो भी रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, जो एंकर इज आस्किंग सम क्वेश्चन बट द अदर पर्सन इज आंसरिंग समथिंग डिफरेंट, वो सर्कमलोक्यूट कह रहा होता है. वो कह भी रहा होता है, जो भी एंकर होता है, कि यार मैंने क्वेश्चन नहीं पूछा, कहता है मैं आ रहा हूँ यार उस पर, लेकिन वो आता नहीं, अपना टाइम एग्जॉस्ट कर लेता है. दे कीप talking around the issue, but they do not talk the main issue. That is circumlocution होता है. And such a person is known as circumlocutor. या what is he doing? Circumlocutory होता है. Hope you understand. So we have extended 24 session, have tried to give you more insight into the words. Okay, that is the end of the session 25 for you. Kindly do the exercise after this. I suggest revise all the 25 sessions so far that we have done, so you won't forget. Find some time to revise all the sessions that we have already done. It will not take much time, but definitely it will boost your confidence. Thank you very much for being with me.
God bless you.